Very good morning. Honorable Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh Ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan Ji, Secretary Ministry of Health and Family Welfare, Sri Rajesh Bhushan Ji, Director AIMS, Dr. Randeep Guleria, the dignitaries, the DHS, the GAFMS, DCGI, Director CCMB from Hyderabad, the Chairman, Dr. Reddy's Laboratories, Dr. Satish Reddy, all other dignitaries who are present, the Director Generals, the Directors, and everyone who is watching this live from various parts of the country, and friends from media, very good morning to all of you. Firstly, I welcome our Honorable Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh Ji, who has been continuously monitoring, encouraging us through the last 1 year when we have been going through these trials. I think almost every 15 days to 1 month, he has been taking the inputs from me, guiding us and the way forward for this, and seeing that there are nothing we are missing here, and trying to see that the scientists are encouraged to work all through. I welcome you, sir, and I thank you for coming here for releasing this first batch of this drug. I thank Honorable Minister of Health, Dr. Harshvardhan Ji, whom actually when I spoke to him has shown a lot of interest, took the data, gone through the data, and in fact yesterday he spoke to the scientists to get the complete data from them, how it works and what all you have done. I welcome the Health Minister, Sri Dr. Harshvardhan Ji. I also welcome Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, and also the Director, AIMS, Dr. Guleria, and all others who are present here. The 2DG molecule, the scientists of DRDO have been working for a while. The laboratory at Gwalior, DRDO, working on the molecule and synthesis of it, and then INMAS carrying out the complete studies on that, and particularly last 1 year when the scientists have felt that this particular molecule will be very useful in fighting the COVID. I'd like to thank here the Director CCMB who is present online, who has come forward, and the first test of this molecule was done at CCMB Hyderabad on COVID virus. Dr. Reddy Laboratories, who was our technology partner, who has taken the technology long back and has been there with us all through the trials, and together the DRDO and Dr. Reddy's Laboratories have gone through the clinical trials, completely presenting the data to the DCGI, taking the necessary directions, and conducting the clinical trials across the country in various hospitals, more than about 30 hospitals in phase 2 and phase 3, and on large number of patients. And that's how the approval for emergency usage of this particular drug, adjuvant drug for this therapeutic drug. Now I wish Dr. Reddy's Laboratories will take it forward, will be able to produce this fast, and will be making it available to the patients of COVID, and I wish that the patients will be able to use it, and wish this drug will be helping large number of patients to recover. I once again thank Honorable Raksha Mantri for coming over here and releasing this drug, and I also thank Honorable Health Minister for joining this event
and handing over this to the various hospitals. Thank you very much once again, and all the best to the entire team of INMAS, DRDE, who have worked a lot for this, and my best wishes to the Dr. Reddy's Laboratories, and wish that this drug will help a lot of COVID patients to recover faster. Thank you. Thank you, sir. Together we all can do it. May I now request Dr. K. Satish Reddy, Chairman of Dr. Reddy's Laboratories, to share the challenges and production plans for 2DG from Hyderabad. Honorable Raksha Mantri Ji, Health Minister Swarjan Ji, DRDO Chairman Satish Reddy Ji, dignitaries, senior level officials from the government, ladies and gentlemen. It indeed is a proud moment for all of us, as we are very, very happy that we are able to partner with DRDO and INMAS in developing this product 2DG for the patients who have moderate to severe COVID, in the hospitalized conditions. This, in fact, I would say is a reaffirmation of our commitment from Dr. Reddy's Laboratories to working on COVID disease and also addressing through a wide range of therapeutics as well as preventive options. We are indeed very, very thankful to DRDO collaborating with us on this very, very important project. In fact, this collaboration has helped us to come up with a unique treatment option that can act as an add-on, as an adjunct to the standard of care for COVID patients in this setting. In fact, Dr. Reddy's is committed very, very closely to work with the Government of India and with DRDO and do our best to make sure that 2DG is available across hospitals, both government hospitals as well as the private hospitals throughout the country. And we expect that 2DG can be commercially launched in the very early part of June itself, the first week of June, after which there will be a progressive ramp up on the production of the medicine, and our team is working very hard to make sure that this is possible. I just wanted to make this commitment that we will increase our capacity and the rate of production for both API as well as the formulation of 2DG to ensure increased availability across the country and to help bring an additional treatment option when it comes to fighting the COVID disease. The whole country is struggling at this point of time, and it does require support, help, and options from all quarters possible, and especially when it comes to treatments. This is one more that we are able to provide in the whole ammunition in terms of fighting this COVID disease. Once again, I would like to express my sincere gratitude to the Government of India, the DRDO, INMAS, the regulator, the DCGI, and the whole organization of CDSCO, and also particularly my own team at Dr. Reddy's for working together, very close collaboration to come up with an additional treatment option for patients in these very, very extraordinary times. I wish everyone the best, and thank you very much, Chairman. Thank you. Thank you, sir. And now I request Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh to release the drug to the nation. Thank you, sirs. May I now once again request Honorable Raksha Mantri to hand over the drug to the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan Ji.
And now I request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to the Director AIMS, requesting Director AIMS Dr. Randeep Guleria, Professor Randeep Guleria to receive the drug from Minister of Health. May I once again request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to DG FMS. He was not able to come due to some personal exigency. Lieutenant General. May I now request Dr. Harshvardhan Ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Science and Technology and Earth Sciences to address. It's okay. परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान DRDO के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ DRDO के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबॉर्ट्रीज के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन्स को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन्स को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे, उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरीज लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इनमास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर
रेडीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के डीजी डॉक्टर सुमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस एक साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। एक साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस अवसर पर मैं DRDO को और उसके सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया, और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब हमारे को अस्पतालों के बेड्स की कमी महसूस हुई, हमें ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस हुई, ICU बेड्स की कमी महसूस हुई, तो खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश के अंदर, लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में, जम्मू में, कश्मीर में, जगह जगह सारे देश के अंदर जो है कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स विद इन नो टाइम, और अभी भी जो है वो प्रक्रिया ऑन है। इस समय जो दोबारा से हमारे सामने जो है एक सर्ज के कारण ज़्यादा तकलीफ आई, उस तकलीफ में भी बहुत बुलंदी के साथ, और जब देश ने देखा कि हमारे को एक साथ केसेस बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन है शायद उसको पर्याप्त मात्रा में सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए भी कुछ करना है, तो फिर DRDO उस समय भी उसने आकर अग्रणी भूमिका निभाई, और आज जो एक बड़े पैमाने पर PSA प्लांट्स, जो प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट्स जो देश भर में लगाए जा रहे हैं, और मैं विशेषकर दिल्ली का तो मुझे इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि थोड़े ही दिन पहले की बात है कि जब हमने अपने मीटिंग अपने ऑफिस में करके DRDO को कहा था कि आप तुरंत हमारे 5 जो अस्पताल हैं इनके अंदर तो तुरंत लगा दीजिए, और अभी कुछ ही दिन के अंदर जब मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, एम्स में, सफदरजंग अस्पताल में ऑलरेडी लग चुके हैं, और लेडी हार्डिंग में और हमारा जो एम्स झज्जर है उसमें बहुत जल्दी लगने वाले हैं। और खाली यही नहीं, 380 स्थानों पर खाली DRDO की मदद से अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है ये PSA प्लांट्स जो है लगने वाले हैं, और बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर DRDO उसके वैज्ञानिक लगातार हमारे को मदद कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम सब हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद आज लेना चाहते हैं
मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को, सभी डॉक्टर्स को, पूरे DRDO के पूरे इंस्टीट्यूशन को इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो ये नई दवा 2DG के नाम से देश के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, डॉक्टर रेड्डीज लैब ऑलरेडी वैक्सीन्स के फ्रंट पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध होगी और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में, उस जंग में हमको और मजबूती प्रदान करेगी और कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णायक विजय प्राप्त होगी और उसमें इस दवा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी प्रार्थना, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको, DRDO के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को और विशेष रूप से श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी को मैं बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, sir. The past year has been challenging to say the least, but yet a year of courage, a year of fight back and strength of the nation. May I now request Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji to address the country. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी DRDO, डॉक्टर राजेश भूषण, हेल्थ सेक्रेटरी, एंड मिस्टर अपर्णा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर सुनील कुमार, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर VG सोमानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एंड लेफ्टिनेंट जनरल सुनील कांत, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर K सतीश रेड्डी, CMD, डायरेक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद, सभी साइंटिस्ट, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर और हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, सचमुच आज मुझे बेहद खुशी है कि DRDO द्वारा तैयार किए गए 2-deoxy डी ग्लूकोज, जिसका संक्षिप्त नाम है 2DG, इस ड्रग के लॉन्चिंग सेरेमनी में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा कि इस देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आपको बतलाया कि कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी और हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूं। पूरे DRDO को बधाई देना चाहता हूं। DRDO के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी, कि बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी कि यह काम हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं ये कहूंगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से कि यह सब सारा समाप्त होने के बाद ये जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर K सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा, क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की, तो एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड,
सबसे जबरदस्त ये फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारे ये जो काम हुआ है, मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, कि उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे ही रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं तो सचमुच मुझे लगता है कि उसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है। और इन्हें जिन्हें करना चाहिए, राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर एम्स डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई वेव आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन की समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक अब हम लोगों ने रेफलाइज कर लिया है। अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। समय समय पर सेक्रेटरी हेल्थ, जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी के मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी अब कोई चैलेंज हमारे सामने कोई मेजर ऐसा शेष नहीं बचा है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, यह सब सारी चीजों की कितनी कमी थी। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी और कुछ लोगों के आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता था। लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा यह हुआ है और यह कहते हुए मुझे सचमुच बेहद खुशी हो रही है। अब ऑक्सीजन के संबंध में मैं देख रहा था कि 17 मई को यहां पर हमारे पास 4739 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी। आज हमारे पास मोर देन 9,500 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन है और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि रोज ये फिगर बढ़ रही है, एग्जैक्ट फिगर बतलाना तो संभव नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि यह टेस्टिंग और आगे बढ़नी चाहिए और उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर यह टेस्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए।
और आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और ये सब जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आवश्यक जो टेस्टिंग किट्स हैं, टूल्स हैं, वह देकर उनको एम्पावर किया जाना चाहिए ताकि वह भी टेस्टिंग के काम में लग सकें। मेडिकल ऑक्सीजन में भी तेजी के साथ यह बढ़ावा आया है, अब उसकी भी शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ ही है। जहां तक रक्षा मंत्रालय का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय भी इस कोविड पैंडेमिक के चैलेंज के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सारे देश को इस बात की जानकारी भी है। अब जैसा डॉक्टर साहब बतला रहे थे कि हमारे डीआरडीओ के द्वारा कई स्थानों पर जो कोविड हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं, आगे भी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। जब मैं इस कार्यक्रम में आने वाला था उसी समय सिक्किम के भी चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि हमारे सिक्किम में भी एक कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन किसी न किसी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट ना आती हो कि कोविड हॉस्पिटल्स जहां भी बने हैं बहुत ही प्रभावी तरीके से और अच्छी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहां भी खुलना चाहिए, यह उनके द्वारा मांग होती है। हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर जो है इसके अंतर्गत भी जो हमारे जो डॉक्टर्स थे उनको दोबारा सेवा में भी लिया है और साथ ही साथ जो रिटायर होने वाले थे उनको एक्सटेंशन भी देने का काम किया है ताकि डॉक्टर्स की भी कमी न रहे। एयरफोर्स ने जिस तरीके से प्रभावी भूमिका निभाई है ये आप सबको जानकारी है। दुनिया के जो भी भिन्न भिन्न देश हैं, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वहां से बहुत सारी चीजों को लाने में जो रोल प्ले किया है उसकी भी सर्वत्र सराहना हो रही है। इंडियन नेवी भी इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंटेनर्स हो, कंसंट्रेटर्स हो, टेस्ट किट्स हो, यह भी लाने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी आपको जानकर खुशी हुई होगी, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि सिविलियंस का भी वहां पर इलाज हो सकता है। और मुझे जानकारी है ऐसे कई मिलिट्री हॉस्पिटल जहां पर पहले सिविलियंस का इलाज नहीं होता था और इस मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी तरह उन सिविलियंस का भी इलाज हो रहा है। लेकिन यह सब कुछ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ सीमा पर से हमारा ध्यान हटा नहीं है। सीमा पर जो हमारी तैयारियां हैं वह तैयारियां यथावत हमारी हैं, हम बराबर हमारी नजर उसके ऊपर भी रहती है और इस काम को भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं। जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि यह 2DG ड्रग हमारी आत्मनिर्भरता के प्रयासों की श्रृंखला में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और मुझे यह भी बतलाया गया है कि डीआरडीओ के इस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड एलाइड साइंसेस, जिसे इन मास कहते हैं, और डॉक्टर सतीश रेड्डी लैब, इन दोनों के सहयोग से यह ड्रग तैयार हुई है। और अब तक हम डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप की बात करते थे। बराबर डीआरडीओ को हम लोग जब भी मीटिंग होती थी हमारी, मैं कहता था प्राइवेट सेक्टर में भी डीआरडीओ की पार्टनरशिप होनी चाहिए। लेकिन आज डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप का इतना अच्छा परिणाम देखकर व्यक्तिगत रूप से मुझे बेहद खुशी हुई है। इसके लिए मैं पुनः डीआरडीओ को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और डॉक्टर के सतीश रेड्डी लैब, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को, आपके लैब की भी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। अब मुझसे बेहतर तो जो स्वयं डॉक्टर हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बतला दिया कि पहले जितने दिनों में बीमारी ठीक होती थी इस ड्रग का सेवन करने के बाद कुछ कम दिनों में होगी। मुझे जो बतलाया गया है 2.5 दिन शायद का अंतर आएगा। अब और यह भी बतलाया गया है कि ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी में भी 40% की कमी आएगी। यह बहुत बड़ी बात है, यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। और मुझे यह भी बतलाया गया है कि ORS सोल्यूशन की तरह है, ये पाउडर है शायद, उसको घोल कर भी उसको पिया जा सकता है, यानी इसको खाने में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है।
तो आज के अवसर पर इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी एक दूसरे के साथ, जितने भी संस्थाएं हैं हमारे इस देश की, सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इस पर मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सभी के सम्मिलित प्रयासों से यह देश बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकता है, करने की कुवत रखता है और करेगा, और उस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों और सभी निरोग हों, यह शुभकामना देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you, sir. We at DRDO are honored and privileged to have the benefit of your guidance, vision, and timely advice always. May I now request Dr. A.K. Mishra, Director INMAS, to thank the dignitaries and all those who have joined us online to witness this event, signifying the hope through science. Very good morning to all of you, dignitaries on the dais, off the dais, online, media personnel, ladies and gentlemen. I would like to express my gratitude and thanks to all of you. Specifically, I would like to offer my special gratitude to Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, Professor Rajnath Singh Ji, giving the trust, giving the guidance to DRDO, through DRDO, to take care about the society at large. I would like to share one thing over here is that Guru Gobind dono khade kaake lagum pao, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं ये प्रसंग इसलिए कहना चाहता हूँ कि माननीय रक्षा मंत्री जी मेरे टीचर होते थे 1980 में मिर्जापुर केवी कॉलेज में। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया है आज के दिन, कि मैं उनके सामने बो करूं और ये बताऊं कि ये आप ही की दी हुई धरोहर है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। Besides that, we are very grateful to you, sir, for your kind gesture through DRDO to serve the society. Our Health Minister हर्षवर्धन जी, माननीय हर्षवर्धन जी, अब इससे बड़ा आपके सामने टेस्टिमोनी क्या हो सकती है कि रक्षा और स्वास्थ्य दोनों मिल करके देश की सुरक्षा कर रहे हैं और यही अपना उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हम के ऊपर, हमारे ऊपर आपने अपना विश्वास प्रकट किया। जो हमारे सेक्रेटरी जी सतीश रेड्डी जी हैं, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सतीश का मतलब होता क्या है। इन्होंने हमारे सारे वैज्ञानिकों को पुश किया कि आप कितनी आपकी पोटेंशियल है, पर इनका ऑब्जेक्टिव एक यही था कि हमारे पीपल, हमारी कंट्री कैसे सेव हो सके। एंड एंड ऑफ द डे इन पेंडेमिक एट पर्सनल लेवल वी नो द हार्डशिप, we know the hardship of the people going through. With all you intellectual, you artists working in the lab and outside the lab, you have realized that today we are celebrating a successful light that is going to cure the people of the country with this. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.